Hello viewers, this is Anand Kushwaha from Rajwada classes. Students, our topic is narration, which is also known as direct indirect speech. This topic is very important for SSC students as well as HSC students. Now students, आप सभी को पता होगा कि ग्रामर इंग्लिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इन एवरी एग्जाम वी हैव grammar questions. For doing this question, this video is very important for you. So if you are new in my channel, please subscribe the channel and share this channel and share this video. Okay students, so let's start our video. Okay, Rama said I am very busy now. Rama said I am very busy now. In this sentence, Rama is reporter, said is reporting verb, and I am very busy now. This is reporting speech. Understood students? Okay, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Then how to change this sentence in direct speech to indirect speech? So students, first we have some rules and regulations. According to these rules, we have done from direct to indirect. Okay, what is first rule? Change the reporting verb according to the reporting speech. Understood student? First rule. Then आता है हमारा second rule. Remove the inverted commas from the first means direct speech sentence and कॉमर्स को रिप्लेस करना है विद द वर्ड दैट, THAT, दैट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? दिस इज आवर सेकेंड रूल. चेंज द प्रोनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच अकॉर्डिंग. क्लियर है यहाँ तक? ये था हमारा थर्ड रूल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फॉर चेंजिंग द प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ड वी हैव ए ट्रिक वर्ड. दिस इज नोन एज सन, SON. Understood? In which S stand for subject, O stand for object, and stand for no change. Clear? Now first one is S stand for subject. It means that the pronoun of the sentence is changed, is lie according to the subject of reporting verb. Understood students? Example, she says I am in 10th class. What? डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है हमारे पास. she says I am in 10th class. इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच है she says that she is in 10th class. Now students, in this sentence सब्जेक्ट का था रिपोर्टिंग वर्ब का सी, और ये जो सी था, सी कौन है? एक गर्ल. वो गर्ल अपने बारे में बता रही है आई एम इन 10th स्टैंडर्ड या फिर 10th क्लास. सो आई को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया? सी से, बिकॉज वो जो आई थी वो आई कौन थी? गर्ल. अंडरस्टूड? आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा. ओके स्टूडेंट्स? देन ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट. द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच is changed according to the object of reporting verb. Example, डायरेक्ट स्पीच में एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे पास. she says to me you have done your work. she says to me you have to done your work. Then here in reporting verb me, this is object. ओके, तो इसका जो यू है, ये यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है? हमारा मी के अकॉर्डिंग. ना, इसका इनडायरेक्ट स्पीच है. सी टोल्ड्स मी, सी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क. अंडरस्टूड? यू को रिप्लेस किया हम लोगों ने आई से. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? देन आता है यन स्टैंड फॉर नो चेंज. In this also we have example, direct speech. He says he does not work hard. He says he does not work hard. Understood?
इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या होने वाला स्टूडेंट्स? ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। इन दिस सेंटेंस, इन दिस डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस में ही डज नॉट था, ये मीन्स ये ही क्या था, पहले से एक प्रोनाउन था, इसको हम लोगों ने क्या चेंज किया है, यन स्टैंड फॉर नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज हुआ नहीं है। सो ही सेज दैट ही डज नॉट वर्क हार्ड। सो दिस इज आवर बेसिक ट्रिक for the direct to indirect speech. Understood students? Now student, this is our very important topic or very important rule for the direct to indirect speech. If the reporting verb is given in the present or future tense, then there is no change in the reporting speech. Understood students? जो भी हमको रिपोर्टिंग स्पीच दिया रहेगा हम उससे एज इट इज कॉपी करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छी तरह से समझते हैं। ओके, व्हाट इज अवर एग्जांपल? द टीचर सेज नेहा यू परफॉर्म ऑन द स्टेज। ओके, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? द टीचर सेज दैट नेहा यू आर परफॉर्म टू स्टेज। ओके, इस सेंटेंस में हम लोगों ने स्टूडेंट्स कोई भी चेंजेस नहीं किया, बिकॉज द टीचर सेज, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब था ये हमारा किस में था? प्रेजेंट टेंस में। और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो सकता है? हमारा फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो भी हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, यहां तक बहुत आसानी से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नाउ वी हैव टू गो फॉर मोर बट लिटिल बिट हार्डर। ओके स्टूडेंट्स, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट टेंस, देन द रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंजेस टू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। अंडरस्टूड? इट मीन्स दैट इफ द our sentence is given in simple present tense, then we change it in simple past tense. It means reporting speech is given in present continuous tense, we change it past continuous tense. Our sentence is given in present perfect continuous tense, we change it into past perfect continuous tense. If our sentence is given in simple past tense, then we change this into past perfect tense. Our sentence is given in past continuous tense, then we change this past perfect continuous tense. और अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है तो विल और शैल के प्लेस पे हम लोग वुड का यूज करेंगे, और कैन के प्लेस पर कुड का, और मे के प्लेस पे माइट का। ये आपको इस टेबल के थ्रू क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, और ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद करके लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड टिल हियर? नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम अदर वर्ड्स विच चेंज इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, उनमें भी कुछ चेंजेस होता है, जैसे हियर, देयर, नाउ, देन, दिस, दैट, टुडे, दैट डे, दिस, दोस, tonight, that night, yesterday, the previous night, last night, the previous night, last week, the previous week, tomorrow, the next day, next week, the next week, the following week, ago, before, thus, so, come, go, now, then, या फिर just then। ये भी स्टूडेंट्स आपको इस टेबल के थ्रू क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, और आपको इस टेबल के थ्रू ही इसको भी याद रखना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते टाइम ये दोनों टेबल के साथ साथ एक और टेबल बनने जा रहा है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आपको ये तीनों टेबल बहुत ही अच्छी तरह से बायहट करके रखना होगा। आवर थर्ड टेबल इज चेंज इन पर्सन। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के चेंज करने के लिए पूरे के पूरे रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट 3 टेबल्स थे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स वी हैव डू सम एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इज इन अ बेटर वे। आवर फर्स्ट एग्जांपल इज ही सेड आई एम अनवेल। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसमें यह देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ
है वो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। और अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा या तो फ्यूचर टेंस में होगा तो उसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो हमको चेंज करना है। ओके, सो ही सेड, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, आई एम अनवेल, इसे हम अब चेंज करने वाले हैं। ओके, सो इन डायरेक्ट स्पीच ही सेड दैट, इन रिपोर्टिंग स्पीच आई एम वेल, सॉरी आई एम अनवेल, तो आई किसके लिए यूज हुआ था, ही के लिए। सो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आई को किस में चेंज कर देंगे, ही में। ओके, सो इनडायरेक्ट स्पीच हमारा क्या बन जाएगा, ही सेड दैट, he said that he was unwell। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। देन आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, she said my father is reading a book। she said is a past tense रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, तो इसमें भी हम लोग चेंज करने वाले हैं। she said that, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, she said that। अब स्टूडेंट्स उसने क्या बोला, हर फादर, मीन्स शी सेड दैट माय फादर, वो लड़की है स्टूडेंट्स सी, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हर। तो एग्जाम्पल क्या चेंज होगा हमारा, शी सेड दैट हर फादर इज रीडिंग ए बुक। यहां तक क्लियर हुआ। देन मोहन सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। ये सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में था, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं। सो मोहन सेड दैट ही हैड बीन, आई था स्टूडेंट्स, वो मोहन ने बोल रहा है खुद के बारे में, तो अगर मोहन के बारे में दूसरा कोई बताएगा तो वो आई के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेगा, ही। सो मोहन सेड दैट ही हैड बीन, हैव का क्या हो गया, हैड, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चेंज हो गया, ही हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस जुलाई। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज होल अबाउट नरेशन, मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसी तरह के और भी वीडियोस और भी ग्रामर के लेक्चर्स और भी चीजें अटेंड करने के लिए राजवाड़ा क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।